Fine, thank you. Okay, so which chapter have you done in class? Have you started the structure of atom? Yes. Okay, so do you know the atomic numbers? How many elements have you learned? In serial order, not randomly. How many elements do you know? 180. Hanji? 180. 118, you know all of them. Acha, ye batao, do you have assignment? First 20. Okay. Have you got this assignment? And yes. Okay. So 1 to 20, you remember. I know there are 118 elements. I know them all, but you'll certainly learn them. But let's do first 20 first. Who knows all of them in serial order? Any one of you who would like to tell me atomic numbers with elements? Any one of you who would like to tell me atomic numbers 1 to 20 in serial order? Your voice is not audible properly. Okay. जोर से बोलो या फिर सुनाई नहीं दे रहा है बिल्कुल भी जोर से बोलो. जोर से बोलो ओके ठीक है so who is going to tell me the first 20 elements in serial order? Raise your hands who could tell me first 20 elements. Okay, one of you only. हाँ जी चलो बोलो. First is Hydrogen. second is Helium. third is Lithium. fourth is Barium. fifth is Boron. sixth is seventh Nitrogen. eighth Oxygen. ninth Fluoride. 10th, Neon. 11th, Sodium. 12th, 13th, aluminium, 14th, Silicon. silicon, 15th, Phosphorus. phosphorus, 16th, sulfur, 17th, 18th, Argon. 19th, Potassium. and 20th is calcium, right? Now tell me, in सब जो 20 elements हमने लिखे हैं, इन सब में क्या चीज डिफरेंट है? Atomic number. Atomic number. And what is atomic number? इनको कैसे पता है इनका atomic number क्या है? या हमने कैसे असाइन किया है इनको atomic number? कैल्शियम 1 पे क्यों नहीं है, पोटेशियम 2 पे क्यों नहीं है, या कार्बन 3 पे क्यों नहीं है? कैसे असाइन होता है इनको atomic number? Ma'am, due to number of electrons. Number of electrons. What are electrons? Negatively charged particles. Negatively charged particles. Where are they present? In the shells of atom. Okay, fine. ठीक है. What other subatomic particles are present in an atom? Subatomic particles means क्या होता है subatomic particle? Electron, proton, neutron. Yes, three types of particles you must have read. One is electron, then proton, then neutron. What charge does proton carry? Proton. Positively charged. Positive. And what charge does neutron carry? Electron or neutron? Neutron. They have no charge. No charge. ठीक है. आपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, थॉमसन मॉडल, बोहर मॉडल पढ़ा है तीनों? Yes. Very good. So can you tell me how does an atom look like? कैसे बनाते हैं एक एटम, या एटम बोलते हैं तो आपके माइंड में क्या पिक्चर आती है, कैसा दिखता है एटम?
A nucleus is present at the center. After that, in nucleus there are neutrons and protons and four shells. How many shells? Four shells. There's अच्छा, ठीक है, अभी तक आपने 4 शेल्स की हैं, लेकिन वैसे 7 शेल्स तक एलिमेंट्स को फिल किया जा सकता है, जितने एलिमेंट्स हमने डिस्कवर किए, जो आपने बताया 118 एलिमेंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कवर्ड एंड दे कैन बी फिल्ड इन 7 शेल्स. ठीक है, जिसमें से आपने अभी 4 शेल्स पढ़ी, KLMN ऐसे पढ़ा है. yes. जब आप हायर क्लासेस में जाओगे आप पूरे 7 शेल्स की फिलिंग देखोगे. आपने कभी पीरियोडिक टेबल देखा है, स्कूल में देखा है, किसी क्लास पे लगा हुआ देखा है, या इंटरनेट पे देखा है पीरियोडिक टेबल? Yes. अगर आप काउंट करोगे ना उसकी लाइंस, तो वो 7 पीरियड्स बोलते हैं हम उनको. 1 2 3 4 5 6 7. नेक्स्ट टाइम जब भी आप देखोगे पीरियोडिक टेबल, तो वहां पर काउंट करना, वो 1 to 7 शेल्स को रिप्रेजेंट करता है, और हर शेल में एक फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो आपने Please speak loudly. Students sitting at back are not able to listen. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं माइक चेक करवाती हूँ. कि अभी मैं बोल रही हूँ, आप बता देना बेटर होगी साउंड या नहीं है बेटर, राइट? सो मैंने कहा आपको टोटल हमारे पास 7 शेल्स होती है. 1 3 4 5 6 7. कुछ बेटर हुई आवाज या वैसी है जैसे पहले थी? Now it is better. It's better? Okay, fine. Thank you, ma'am. Okay. So we have 7 shells. हर शेल में एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट शेल में है 2, then 8, then 32. Okay, we call them magic numbers. This gives us number of electrons which are present in particular shell, right? So अगर आप periodic table में भी देखोगे, मैंने आपको कहा लाइंस, अगर आप horizontal lines वहां काउंट करोगे, you'll get 7 lines which are called 7 periods. और हर एक horizontal line में अगर आप elements का number count करोगे, you'll get this much number of elements. Like in first period, you'll see just 2 elements, hydrogen and helium. ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2. तो बेसिकली जब आप ये न्यूक्लियस बनाते हो और साइड में शेल्स आप ऐसे बनाते हो, तो यही वो शेल्स हैं जिसमें आपके पास फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. लाइक दिस इज 2 8 32. ठीक है, तो ये इन्हीं शेल्स में ये इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, और यही जो पूरा नंबर है, इसमें क्या फर्क होगा, हर एलिमेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता रहता है. ठीक है, जैसे अगर आप हाइड्रोजन का पिक्चर बनाते हो, तो आपको पता है उसके पास एक शेल, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर 1 है. जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, उसका मतलब है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और उसके पास 1 प्रोटॉन भी होता है. देखो, जब भी आप कोई एलिमेंट बनाते हो, आप पूरा ऐसे सिंबल उसका बनाते हो, कोई उस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता किसी एलिमेंट पे. पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज तब आता है जब वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देता है या किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है. जब वो अकेला एलिमेंट है कोई भी, उसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, जो कि उसके प्रोटॉन की वजह से होता है, उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है. तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है तो कैंसल आउट हो जाता है. इसीलिए ओवरऑल एक सिंगल एलिमेंट पे न्यूट्रल स्टेट में 0 चार्ज उसके ऊपर होगा. ठीक है, आपने कैटायन एंड आयन पढ़ा? Yes. यस, ओके, फाइन.
ठीक है, तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर तो उसके पास हर एक एलिमेंट के पास जो फिक्स्ड अमाउंट, जो उसका एटॉमिक नंबर है, उतने उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने उसके पास प्रोटॉन होंगे, तो वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, लेकिन जैसे अगर आपके पास सोडियम है, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, सो क्या सेंटर में न्यूक्लियस है, फिर इसके बाद शेल्स हैं। अब अगर मैं 2 ही शेल्स बनाती हूँ, I know maximum number of electrons which could be present in first shell, that is 2. तो इसमें तो 2 ही आ सकते हैं। सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो ये तो 10 हुए। लेकिन सोडियम के पास तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो थर्ड शेल है उसमें एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस सोडियम के पास जो इसका एटॉमिक नंबर है, Z से आप रिप्रेजेंट करते हो एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर है 11। इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो है 11। इसके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो है 11। ठीक है, तो इसके पास क्योंकि 11 नेगेटिव सॉरी और 11 पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल एंड ऑपोजिट, अभी तक ये न्यूट्रल है, Na न्यूट्रल है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इसको ऐसा लगता है यार ये भी मेरी फुल है एकदम शेल, मैक्सिमम इसमें आते हैं जितने उतने आ चुके हैं, ये वाली शेल भी फुल है, लेकिन जो थर्ड वाली शेल है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया है। ठीक है, तो इसका क्या कर सकते हैं फिर, अगर लास्ट शेल में आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको आराम से लूज किया जा सकता है, इट कैन बी लॉस्ट इजीली। क्यों, इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि इसके पास पिछली शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल हो जाएंगे, सॉरी, और ये स्टेबल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके Na से Na पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, क्या मतलब हुआ, एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 रह जाएंगे, और जो इसके प्रोटॉन है वो 11 है, तो 11 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव, तो 10 और 10 तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज उसके पास रह जाता है। इसीलिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो वो Na पॉजिटिव कैटायन बन जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकना। राइट, तो किसी भी एलिमेंट पे क्या चार्ज आ रहा है ये डिपेंड करता है इस चीज पे, इसके पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। राइट, अगर लास्ट शेल में किसी के पास भी 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करता है, उनको लूज कर सकता है, और लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाता है, और वो कैरी करता है +1 चार्ज। आपको और कोई कैटायन पता है जिनके ऊपर कोई चार्ज होता है +1 +2, कोई कैटायन पता है, एग्जाम्पल कैटायन के बोलो। आपने बोला कैटायन पता है क्या होती है, एग्जाम्पल भी पता है, नहीं आता। एक तो अभी बताया, क्या एग्जाम्पल बताया कैटायन का मैंने, Na तो एटम हो गया, Na पॉजिटिव इज कैटायन। ठीक है, वैसे ही कैल्शियम है, कैल्शियम तो एटम हो गया, Ca2 पॉजिटिव, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज आता है। अब आप सोचो कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन मालूम है क्या होती है? Yes. Yes, what is its configuration, tell me, बोलो, क्या एटॉमिक नंबर है कैल्शियम का? 20. 20। ठीक है, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम? In first shell there will be 2 electrons. हाँ, फर्स्ट शेल में कितने? 2, 2. देन Second shell 8. 8, देन ये तो 10 हुए टोटल, उसके पास 20 है। थर्ड शेल में 8 अगेन, अभी 18 हो गए, फिर उसके बाद
लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अब कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम बोलता है ये भी फुल है, ये भी फुल है, ये भी फुल है। अगर मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं तो मैं बहुत स्टेबल हो जाऊंगा, क्योंकि फुल हो जाएगा सारा पिछला शेल्स मेरे पास। तो इसीलिए वो टेंडेंसी रखता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की। आपको एक टेबल होगा ना आपकी बुक में, जिसपे चार्जेस दिए हुए हैं कैटायन एनायन के फॉर्मूला मेकिंग के लिए, पढ़ा है आपने वो? यस। तो वो आपने याद किया है कि किसके ऊपर क्या चार्ज होता है, या आपने समझा है कि कौन सा एलिमेंट क्या चार्ज कैरी कर सकता है? बोलो। हैव यू लर्नड इट और यू हैव अंडरस्टूड इट कि कोई एलिमेंट क्या चार्ज कैरी करता है? बोलो। आपको मालूम है कैसे आता है चार्ज? अभी बताओ, क्लोरीन पे क्या चार्ज होता है? What charge does chlorine carry? Is it positive or negative? नेगेटिव How much negative? 1. Why so? Because you're reading it from the book, right? बताओ बेटा, बुक से देख के ही आपको पता है कि कोई चार्ज क्यों कैरी कर रहा है, कितना चार्ज कैरी कर रहा है? एंड वी डोंट नो। वी डोंट नो। ओके फाइन। अभी देखो ना, कॉन्फ़िगरेशन तक सबको आता है? यस। ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखना कि किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में अगर देखो ये इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, दिस 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये लास्ट शेल, वैलेंस शेल बोलते हैं इसको, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की लास्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है। तो क्या है कि हर कोई चाहता है कि वो फुल हो, उसका पूरा शेल पूरी हो जाए। अगर उसको अपनी लास्ट शेल में फुल इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते तो वो सोचता है अगर मेरे पास 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे लास्ट शेल में तो मैं उनको निकाल दूंगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, 2 भी इजी है, 3 भी चलो निकाल लूंगा। ठीक है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन निकालता है, ठीक है, तो पहले तो क्या था, मैंने आपको बताया जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो पॉजिटिव एक्स्ट्रा बच जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन्स होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। आप हमेशा ऐसे बनाते हो कि सेंटर में न्यूक्लियस है और साइड में शेल्स हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और साइड में होते हैं इलेक्ट्रॉन, राइट। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये ही न्यूक्लियस का मास बनाते हैं। मेन उसकी चीज जो है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड है, इसीलिए इसको हम मास नंबर ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम क्यों बोलना जरूरी है, क्योंकि चार्ज वाला तो एटम नहीं, आयन होता है। तो एटॉमिक नंबर होता है किसी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है सेंटर में, इसके अंदर सारे के सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये पूरा एटम का मास बनाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मास नंबर। ठीक है। जैसे अगर आपके पास सोडियम की बात हो रही है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसके पास 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 12 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का नंबर आपको याद रखना पड़ता है, ये जरूरी नहीं है कि इसके इक्वल हो, ये डिफरेंट होता है। ठीक है। अब अगर मुझे एटॉमिक नंबर पूछा जाए सोडियम का, तो दैट इज इक्वल टू 11। और अगर मुझे मास नंबर, ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम मास नंबर, तो मास नंबर के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो 11 प्लस 12 ये हो जाता है 23। ठीक है। तो आप एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हो और मास नंबर ऊपर लिखते हो। ठीक है।
ये है एटॉमिक नंबर, ये है मास नंबर। ये आपके पास एलिमेंट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये है कितने प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हैं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जनरली क्या होता है, अगर आपके पास कोई एलिमेंट है, जैसे हीलियम है, बेरिलियम है या ऑक्सीजन है, और आपके पास सोडियम है, एल्यूमिनियम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका डबल इसका मास नंबर हो जाता है, ठीक है। जो आपके पास जो आपके पास इवन नंबर वाले एलिमेंट्स होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर इवन है, उसका ऑलमोस्ट डबल जो है उसका मास नंबर होता है। जैसे ऑक्सीजन है, दिस इज 8, तो इसका मास नंबर 16 हो गया, ठीक है। इसे कार्बन है, दिस इज 6, इसका मास नंबर 12 हो गया। तो अगर ये नंबर एटॉमिक नंबर इवन है तो इसका मास जो है वो डबल होता है, राइट। और अगर ये एटॉमिक नंबर ऑड है तो इनका जो मास है वो डबल में एड 1, लाइक ये 23 है, तो 11 2 22 प्लस 1, तो डबल करके उसमें 1 और ऐड हो जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम का 13 है, 13 2 26, इसका होता है 27, क्योंकि ये नंबर ऑड हैं। तो ऑड अगर किसी का एटॉमिक नंबर है तो जो उसका मास नंबर होगा वो होगा डबल प्लस 1, राइट। इफ यू वांट टू राइट इट, प्लीज राइट इट डाउन। इससे आपको थोड़ा सा इजी होगा कुछ पॉपुलर एलिमेंट्स का मास नंबर याद रखने में, क्योंकि आपको एग्जाम्पल आ सकता है कि आप बताओ एटॉमिक नंबर और मास नंबर में डिफरेंस। तो एक एग्जाम्पल देके आप बता सकते हो कि ये किसी का एटॉमिक नंबर है और ये मास नंबर है। डन, ओके बच्चा, And then ओके बेटा, वेरी गुड। अभी देखो, आई वाज टेलिंग यू कि किसी के ऊपर चार्ज कैसे आता है। आपको अगर 1 to 20 एटॉमिक नंबर याद है तो एटलीस्ट आपको उनका चार्ज रखने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि ये लास्ट शेल को हम वेलेंट शेल बोलते हैं, और वेलेंट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी के पास 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो उसको लूज करके +1 +2 और +3 चार्ज एक्वायर कर सकता है, ठीक है। अगर किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो शेयर करेगा, 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो गेन करेगा, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। 1 2 या 3 वाला लूज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज जा रहा है, तो कंपैरेटिवली पॉजिटिव ज्यादा बच जाता है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज आता है जब इलेक्ट्रॉन लूज किया जाएगा, ठीक है। और जब आप गेन करोगे तब नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है। 4 वाला बोलता है कि ना, मैं तो ना ले सकता हूं ना दे सकता हूं, मेरे को लेने के लिए भी बहुत एनर्जी लगेगी, देने के लिए भी बहुत एनर्जी लगेगी, तो मैं शेयर करूंगा,
5 6 7 वाला बोलता है मैं गेन कर सकता हूँ। 5 वाला बोलता है देखो 5 लूज करना तो आसान नहीं है, मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता हूँ। 6 वाला बोलता है देखो 6 लूज करना आसान नहीं है, मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपने 8 कंप्लीट कर लूंगा। 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर उसको मिल जाता है ना तो वो खुश हो जाता है कि मेरे शेल कंप्लीट हो गई। मैम 4 वाला शेयर कैसे करेगा? शेयर कैसे करेगा? ये कार्बन की फैमिली होती है बेटे, इसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने मीथेन सुना है? यस। हाँ, मीथेन होता है ना, जैसे वो गैस होती है मीथेन गैस, जो एलपीजी में भी होती है हमारे घरों में। तो वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अभी ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन का होता है, ठीक है, और ये छोटा वाला इलेक्ट्रॉन कह लो हाइड्रोजन का है। तो ये आपस में, अभी आप अगली क्लास में ये पढ़ोगे कि ये बोलता है मुझे 8 कंप्लीट करने हैं, तो 4 तो इसके पास है ये बड़े वाले सर्कल्स, और 4 इसको हाइड्रोजन के मिल जाते हैं। ये एक एक शेयर कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, दे नहीं रहा। जैसे अगर आप पूछ रहे हो तो देखो, जैसे सोडियम है ना, अगर ये था पहले 281, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ये रह जाएगा 28 और इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अब इसके पास है ही नहीं, वो दे चुका है। लेकिन शेयरिंग का मतलब है कार्बन ने अपना दिया नहीं है किसी को, वो उसके पास ही है। लेकिन साथ में हाइड्रोजन का भी है, जो हाइड्रोजन ने उसको कंप्लीटली दिया नहीं है कि तुम ले लो, ये दे नहीं रहे, ये शेयर कर रहे हैं कि ठीक है तुम यहाँ पर अपना रख दो, मैं यहाँ रख देती हूँ, आपस में हम बॉन्ड बोलते हैं इसको, बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन जैसे NaCl सुना है ना, कॉमन सॉल्ट, नमक। Yes. NaCl का क्या है देखो, Na का मैंने आपको बताया कि क्योंकि इसकी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो लूज करेगा, तो Na पॉजिटिव बना के 28, इसके पास है नहीं अब वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिमिलरली क्लोरीन होता है 287, और मैंने आपको बोला कि 7 वाला, अगर आप इसमें देखो पीछे, 7 वाला क्या करता है, गेन करेगा। क्योंकि अगर वो एक गेन कर लेता है तो वो भी 8 बना लेता है, सबको 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने बनाने होते हैं। तो वो बोलता है मुझे एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये 288 बन जाएगा। तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसका लास्ट शेल में कुछ भी नहीं बचा अभी Na के पास, लेकिन क्लोरीन के पास इसकी लास्ट शेल में ऑलरेडी 7 थे और एक इसने सोडियम से ले लिया, ये वाला कह लो आप, इसने सोडियम से ले लिया, ठीक है। अदरवाइज सोडियम के पास लास्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन था, लेकिन ये इसने दे दिया, किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। तो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं, जिससे Na ने लूज करके बनाई कैटायन और Cl ने गेन करके बनाई एनायन। ये है कैटायन और एनायन। इलेक्ट्रॉन के कम या ज्यादा होने पे चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव आता है। अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन दे दे तो अब इसके पास क्या हो गया देने के बाद, 11 पॉजिटिव, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 10 नेगेटिव, ओवरऑल +1 चार्ज। और लेने के बाद 17 पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 18 नेगेटिव, 1 एक्स्ट्रा नेगेटिव, इसीलिए Cl नेगेटिव। ये लेने और देने पे चार्जेस बनते हैं। लेकिन जैसे कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन किए ना, किसी ने ना दिया ना लिया, उन पे कोई चार्ज नहीं आएगा, वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये ट्रांसफर कर रहे हैं। तो NaCl और मीथेन बहुत कॉमनली आप ये वर्ड्स सुनते हो अपनी कॉमन लाइफ में, रोज नमक खाते हो, एलपीजी गैस यूज करते हो, उसमें मीथेन होती है। तो याद रखना कि ये मीथेन जो है ये बनी है शेयरिंग से, और इस तरह के बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। सुनाई ये वर्ड पहले? मैम नो। ठीक है, सुनोगे, लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये वाला जो शेयरिंग वाला बनेगा बॉन्ड, वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। और जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जब आपस में कंबाइन करती हैं
इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं क्योंकि आयन्स बनी इसमें, ठीक है। ये आपकी केटायन बनी और ये आपकी एनायन बनी, और इसके फॉर्मूलाज तो आपको करवाएंगे ही, ठीक है। ये कोवलेंट वाला नेक्स्ट क्लास में, मगर ये आयनिक वाला ये लिख लो। आयनिक वाला तो आपको आयनिक फॉर्मूलाज अभी करवा ही दिए हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। मैम डाउट। क्या बेटे? मैम जैसे आपने कहा था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, और जब जैसे Na और Cl ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया तो फिर उनका एटॉमिक नंबर भी चेंज हो जाएगा। नहीं नहीं बेटे, मैंने ये न्यूट्रल एटम जो वर्ड यूज किया ना, बार बार मैं बोल रही हूँ न्यूट्रल एटम, क्योंकि न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, आयन्स में नहीं। एटम और आयन में फर्क है। Na एक एटम है, Na पॉजिटिव एक आयन है, ठीक है। तो वो जो डेफिनेशन है कि हाँ जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, वो हमेशा, मैंने यहाँ पर वर्ड भी लिखा होगा अगर वो पिछले बोर्ड पे नहीं था तो वो हमेशा न्यूट्रल एटम पे होता है बेटे, ठीक है, याद रखना। मुझे लगता है वो बीच में बोर्ड का प्रॉब्लम हो गया था ना, तो वो हाँ ये न्यूट्रल, ये लिखा है ना जैसे मैंने, ये हमेशा न्यूट्रल एटम में होगा, केटायन या एनायन में नहीं होगा, राइट। ठीक है, अब देखो, हाँ मैं आपको बोल रही थी कि अगर आपको 1 to 20 एटॉमिक नंबर आता है तो एटलीस्ट उन आयंस का आपको चार्ज याद करने की जरूरत नहीं है। लेट्स से हम ये लिखते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। पहले इसका करते हैं, ठीक है। दिस इज 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288. राइट। अब देखो, अब आप बताओ, सोडियम का तो वैसे हमने कर लिया, लेकिन इसकी लास्ट शेल में क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या चार्ज कैरी करेगा? Positive. 1 पॉजिटिव। जितना इलेक्ट्रॉन 1 2 3 वाला लूज करेगा, ये याद रखना है जो मैंने पीछे बनाया, कि अगर किसी के पास लास्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो लूज करेगा, ठीक है। 4 वाला शेयर करेगा, 5 6 7 लास्ट शेल में है तो वो गेन करेगा, ये याद रखना है, ठीक है। मैम ये इसी के अकॉर्डिंग अब आप देखो और बताओ मुझे कि, हाँ जी, इस पे Na पे क्या चार्ज आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। मैग्नीशियम पे पॉजिटिव। हाउ मच पॉजिटिव? 2 पॉजिटिव, Positive. 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको अगर इन केस आयंस में चार्ज भूल जाता है, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए और देखना है लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव। अब देखो, सिलिकॉन कार्बन की फैमिली जो जितनी भी होती है सब शेयर करते हैं, 4 वाला ना गेन करता है ना एक्सेप्ट करता है, तो ये शेयरिंग में चले जाएंगे, ठीक है। और 5 वाला क्या करेगा? जिसके पास 5 होंगे उसको अगर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स अपनी शेल में बनाने हैं तो क्या करेगा? वो 5 यूज करेगा या 3 गेन करेगा? गेन। 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा एज कंप्लीट करने के लिए, इसलिए जो फॉस्फोरस पे चार्ज होता है वो -3 होगा। सल्फर क्या करेगा? -2 गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, रादर देन लूजिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इट विल प्रेफर गेनिंग 2। और क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। आर्गन क्या करेगा? उसके नहीं, उसके नहीं। कुछ नहीं करेगा, वो कहता मुझे जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी फुल, मेरे पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। समझे ये बात? आयंस पे कैसे चार्ज आता है? यस। क्वेश्चंस कुछ पूछना है इसमें से? मैम नो। अभी देखो, आपने आइसोटोप आइसोबार कर लिया है? Can you repeat? Isotopes and isobars, have you done it? मैम नो। No, okay, but it is easy. देखो, जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है मगर डिफरेंट मास नंबर होता है। जैसे कि
हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ये आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते हो, ये जो एग्जिस्ट करते हैं वही होते हैं, ठीक है। इन सब में एटॉमिक नंबर तो बेटा देखो कभी भी दो एलिमेंट्स का सेम हो ही नहीं सकता, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता, ठीक है। ये सबसे इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इसी के ऊपर बेस्ड पीरियोडिक टेबल बना है कि सबका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। मास नंबर सेम हो सकता है लेकिन एटॉमिक नंबर दो एलिमेंट्स का कभी सेम नहीं हो सकता। ठीक है। अभी ये है 1H1, इसमें क्या है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका मास नंबर है, ठीक है। 1H2, दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज मास नंबर। 1H3 एटॉमिक नंबर एंड दिस इज मास। तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इस 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम, ठीक है। अब ये पेज पे बनाती हूँ, देखो 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम, 1H2 को ड्यूटीरियम और 1H3 को ट्रीटियम। सबका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, इसका मास नंबर 1, मास नंबर 2, मास नंबर 3, ठीक है। ये होते हैं आइसोटोप्स। और एक होते हैं आइसोबार्स। आइसोबार में मास नंबर सेम होता है, ठीक है। ये है आइसोबार, इसमें क्या सेम है, मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। वो तो मैंने वैसे ही आपको बोला कि एटॉमिक नंबर दो एलिमेंट्स का कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो जैसे ये कहता है कैल्शियम है और आपके पास आर्गन है, इसका 20 है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन है उसके तीन मास नंबर कैसे हो सकते हैं? मास नंबर तो डिफरेंट हो सकता है क्योंकि वो न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड करता है और न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। पर जो पार्टिकल तो सेम है, अगर वो चेंज होगा तब नहीं होगी चेंज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। पार्टिकल का क्या मतलब, जैसे हाइड्रोजन था तो उसका एटॉमिक नंबर भी सेम था और उसके न्यूट्रॉन्स भी उतने ही रहेंगे। न्यूट्रॉन्स कैन चेंज ना, ये तो कहीं नहीं लिखा कि न्यूट्रॉन्स का नंबर हमेशा फिक्स्ड रहेगा। हमने हमेशा बात की कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम में सेम रहते हैं, प्रोटॉन्स भी फिक्स्ड होंगे, एटॉमिक नंबर फिक्स्ड होगा, लेकिन न्यूट्रॉन के लिए तो ये नहीं है। न्यूट्रॉन्स का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं, उसकी वजह से मास चेंज होता है जो सेंटर में है। वैसे ही वो न्यूट्रल एटम है तो चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एलिमेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होना है ना, ठीक है। तो चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए न्यूट्रॉन्स का नंबर वेरी कर सकता है। और ये देखो यहाँ पर आइसोबार्स में क्या सेम है, इनका मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है। लिख लो इसको बेटा। और ये जो आपको असाइनमेंट मिली है नेक्स्ट टाइम आपने ये करके आनी है, हम डिस्कस करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं क्लास में क्वेश्चंस करवा दूंगी, ठीक है। ओके यस। ओके बच्चा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे असाइनमेंट मिल गई सबको मैथ्स की? यस। आज हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स।
ठीक है बेटे? ओके, लीनियर इक्वेशन क्या होती है बेटे? हाँ जी, सेक्शन ए, रितेश। हाँ जी बेटा। यस बेटे, आपने कर लिया ये टॉपिक? Yes. तो बताओ, सेक्शन 9th ए, रितेश, What's the question? व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन क्या होता है? रितेश, 9th ए। Absent. एब्सेंट। विराज, 9th ए। The equation which has highest degree 1. Okay, equation whose degree is 1. Linear equation. An equation whose degree is equal to 1. ठीक है? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, हमारे पास क्या होगी फिर? 2 वेरिएबल आ जाएंगे, x प्लस वाई, दोनों का डिग्री क्या होगी? 1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। क्लियर है? जब हमारे पास 2 वेरिएबल है, दोनों की डिग्री 1 है, तो यह है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, अच्छा चलो ये बताओ कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? अच्छा मैं नाम बोलूंगी, वो बताएगा। 9th ए, जानवी। 9th ए, जानवी। How many solutions are possible in linear equation in 2 variable? She is in 9th B class. 9th B, जानवी। Ma'am, she is coming. ओके बेटे। Infinite. Ma'am, infinite. Infinite. Good, very good बेटे। Infinite. Linear equation in 2 variable has infinite solution. Geography की चाहिए? वेरी गुड। अच्छा चलो एक स्टेटमेंट बोलती हूँ, बताना कि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है या नहीं है। ठीक है, कौन बताएगा? 9th बी, प्रबलीन। 9th बी, प्रबलीन। आई है। ओके, स्टेटमेंट ध्यान से सुन लो। टोटल मार्क्स ऑफ मी एंड माई फ्रेंड हैज 150। अच्छा मैं लिख देता हूँ। यस बेटे, मैं लिखूं के समझ आ गया? मैंने बोला टोटल मार्क्स ऑफ मी एंड माई फ्रेंड हैज 150। मैम सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड। अच्छा चलो, मैंने कहा कि मेरे और मेरे दोस्त के टोटल मार्क्स 150 हैं, तब आप क्या बनाओगे इक्वेशन? एक्स प्लस हाँ जी, जो आपने स्टेटमेंट बोली थी, मार्क्स उसके। नहीं मार्क्स तो मैंने बोले ही नहीं ना, मैंने तो टोटल मार्क्स बोले हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 150। 2 पर्सन है, एक मैं हूं, एक मेरी फ्रेंड है, हम दोनों के टोटल मार्क्स 150 हैं। तो इक्वेशन क्या बनी बेटे हमारे पास? ना मुझे मेरे मार्क्स पता है, ना मुझे मेरे फ्रेंड के मार्क्स पता है।
x+2। नो। यस बेटे, आप थर्ड गर्ल, 9th बी, बताओ, आप बताओ। मैम x+y = 150। वेरी गुड। x plus y is equal to 150। x plus y is equal to 150। अब बेटे देखो, मुझे मेरे मार्क्स नहीं पता, गो टू योर सीट बेटे। मुझे मेरी फ्रेंड के मार्क्स नहीं पता, तो मैंने लेट किए मेरे मार्क्स मान लो x है, मेरी फ्रेंड है उसके मार्क्स कितने हैं, y है, दोनों को मिला के कितने बनते हैं, 150 टोटल मार्क्स। क्लियर है बेटे क्वेश्चन? इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें हम एक से ज्यादा क्वांटिटी या हम चीजों को इन्वॉल्व करते हैं, वो हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं। अगर हम सिर्फ एक की बात करती, मैं कहती मेरे मार्क्स 100 है, चलो 100 तो बहुत ज्यादा है, मेरे मार्क्स 80 हैं, ठीक है, तो मैंने एक ही चीज को इन्वॉल्व किया है, खुद को किया है, जब आप किसी का नाम ले सकते हो, तो 1 वेरिएबल था। अब यहाँ पे मैंने यूज किया कि 2 पर्सन है, एक मैं हूं, एक मेरी फ्रेंड है, तो हमारे पास कितने वेरिएबल हो गए, हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल। क्लियर बेटे? 2 वेरिएबल्स क्या होता है कि जब हमारे पास एक से ज्यादा 2 चीजें होती हैं, 2 क्वांटिटीज होती हैं, उनमें चाहे वो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, 2 वेरिएबल्स होते हैं। क्लियर है? ये चीज क्लियर है आप सबको? असाइनमेंट निकालो, असाइनमेंट के क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम एमसीक्यू कर ले, पहले बड़े क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले एमसीक्यू करते हैं। Write whether the following statement are true or false। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, क्या इक्वेशन दी है हमें, y is equal to mx plus c passes through origin। क्वेश्चन में बोला है कि ये इक्वेशन ओरिजिन से पास होती है। हाँ जी। 9th बी प्रिंस, 9th बी प्रिंस। एब्सेंट। साक्षी प्रेजेंट। आंसर दो बेटे, ट्रू और फॉल्स। क्या ये इक्वेशन ओरिजिन से पास होती है? एक बार फिर से बताना। बेटा ये मेरे पास ना इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। फर्स्ट एमसीक्यू है आपका, उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पासेस थ्रू ओरिजिन। तो ये ट्रू है जब फॉल्स है। क्या ये इक्वेशन ओरिजिन से पास होती है? मैम फॉल्स। फॉल्स। क्यों फॉल्स है, रीजन दो। हाँ हाँ बोलो, कोई नहीं बेटे, जो मर्जी बोलो। y = mx है। नहीं, y इज इक्वल टू एम एक्स होता ओनली, फिर तो रीजन से पास हो जाती। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इसलिए रीजन से पास नहीं हो रही। आपके पास 2 वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट टर्म है, कुछ ऐड या कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसीलिए वैल्यू चेंज हो रही है। देखो, अगर मैं यहां से लेट करूं x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, y इज इक्वल टू m इंटू 0 प्लस सी, तो y की वैल्यू तो c आ गई। अगर मैंने x 0 लिया तो y की वैल्यू तो c आ गई। ओरिजिन से पास होने के लिए x एंड y दोनों ही 0 0 चाहिए थे। x एंड y दोनों ओरिजिन चाहिए थे, बट x 0 पे y की वैल्यू c है, तो ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही। सिट डाउन बेटे। आंसर सही है आपका, आंसर इज फॉल्स। आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट, every point on the graph every point on the graph of linear equation in two variable does not represent the solution of linear equation। हाँ जी,
ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। 9 थे सूरवीर, सूरवीन, सरवीन, सरवीन। 9 थे सरवीन। यस बेटे बताओ, ट्रू और फॉल्स? It's false. फॉल्स। रीजन दो बेटे, रीजन दो। चलो मैं एक इक्वेशन देती हूँ आपको। मैंने कहा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, अब मैंने एक पॉइंट लिया, मैंने कहा मेरे पास पॉइंट है 1,2। तो क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन में लाई करता है? जो मैं इस इक्वेशन का ग्राफ, चलो रफ एक ग्राफ बनाते हैं। एक्स 0, वाई क्या आ गया 5, एक्स 0 वाई 5, ये 5 है। यहाँ एक पॉइंट x1 y6 y6 x -1। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रफ सा हमने बनाया ग्राफ। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ग्राफ। अब मुझे बताओ, क्या ये जो 1 2 है, ये मेरे पास इससे पास हो रहा है? Ma'am, yes. मैंने कहा जो मैंने पॉइंट एक लिया ना बेटे 1 2, क्या वो इस जो मैंने ग्राफ अभी प्लॉट किया है उसका सोल्यूशन है? सोल्यूशन से क्या मतलब समझते हो? अ पॉइंट इज द सोल्यूशन ऑफ अ लाइन, इससे क्या समझते हो? मैम वो पॉइंट उसमें लाई बेटे आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही मुझे। मैम वो पॉइंट उस पर लाई करता है। लाई करता है, तो क्या 1 2 इस पे लाई करता है? मैम नो। नो। क्यों नहीं लाई करता? देखो, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ रही है? y की वैल्यू 6 आ रही है, अगर x 1 है तो, है ना? हमने पॉइंट लिया 1 एंड 2। अगर इसको पास करवाते हो तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यस। हमारे पास पॉइंट क्या होना चाहिए था? हमारे पास पॉइंट होना था 1,6। अगर पॉइंट 1,6 होता तो ये सोल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन होता। क्लियर है? तो यहां से हमें क्या मिल गया? एवरी पॉइंट इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। स्टेटमेंट क्या थी देखो, एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ of a linear equation in two variable does not represent the solution of linear equation. Every point on the graph. अच्छा ग्राफ पे, अच्छा मैंने स्टेटमेंट उल्ट कर दी बेटे। मैंने बताया है अभी आपको कि अगर हम ग्राफ के बिना, इस लाइन के बिना कहीं पॉइंट ले लें 1,2, ये इसका सोल्यूशन नहीं होता। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे कोई भी लाइन लो, पॉइंट लोगे इस लाइन पे, वो सारे सोल्यूशंस होंगे इसके। अगर आप पॉइंट लाइन पे कोई भी पॉइंट लेते हो ना, जैसे ये मेरे पास लाइन थी, इस पे मैं कोई भी पॉइंट ले लूं। मैम प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ओके ठीक है, मैं दोबारा करती हूँ explain। हमारे पास बेटा इक्वेशन मैंने ली x प्लस 2, चलो चेंज होगी थोड़ी सी। अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं ना कोई, ये गया आपके पास ग्राफ, इस लाइन का मैंने ग्राफ प्लॉट किया। अगर इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लेते हो, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, कोई पॉइंट यहाँ पे लिया, तो क्या वो पॉइंट इसका सोल्यूशन होगा? अगर आप इस पे कोई भी पॉइंट लो ना, जैसे यहाँ पे पॉइंट आ गया मेरे पास 0,2, ठीक है, कोई पॉइंट आ गया 1,3, कोई पॉइंट आया
-1, 1 मैम यस। है ना। ऐसे हमने कुछ पॉइंट्स निकाल लिए। तो बेटे इस लाइन पे जितने भी आप पॉइंट निकालोगे वो सारे इसके सॉल्यूशंस हो गए। आप फिल करके देखो कोई भी पॉइंट। मैंने क्या बोला, हमारे पास x की वैल्यू क्या है -1 +2, y क्या मेरे पास आया 1, तो हमारे पास पॉइंट क्या मिला -1, 1। तो ये तो सोल्यूशन है। मैम यस। अगर मैं पॉइंट ले लू x = 0, तो y क्या आ जाएगा बेटे आपके पास 0 + 2, +2। तो y की वैल्यू आ गई 2। अगर आप ग्राफ पे जो लाइन है उस पे कोई भी पॉइंट प्लॉट करते हो, वो सारे पॉइंट उस लाइन के सोल्यूशन होते हैं। तो इसका आंसर फॉल्स है बेटे। Every point on the graph of a linear equation in two variable does not represent a solution of a linear equation. Next question. The graph of any linear equation of two variable need not be a line. Graph of any linear equation in two variable need not be a line. लीनियर इक्वेशन, कोई भी हम लीनियर इक्वेशन लेते हैं ना, कोई भी ले लो, सेम ले रही हूं मैं x+2। अब मुझे ये बताओ, क्या ये इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा? क्या इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा? हाँ जी। 9th बी प्रबलीन, प्रबलीन है यस। वही आ रही है। हाँ जी, क्या बेटे ये ग्राफ जो मैं प्लॉट करूंगी ये स्ट्रेट लाइन होगा? मैम यस। हाँ, तो इसके बिना चलो एक और स्ट्रेट लीनियर इक्वेशन का इक्वेशन लेते हैं। मैंने कहा y = 2x + 5। क्या ये इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा? इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा? मैम पता कैसे चलता है कि किसी इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा? अच्छा, इसको बेटा आप रफली प्लॉट कर सकते हो 2-3 पॉइंट्स। अगर पता करना है ना तो रफली प्लॉट करके देखो। देखो मैंने कहा x की वैल्यू 0 है तो y कितना आ गया बेटे 5 आ गया। x 0 है तो y सपोज यहाँ पे 5 है, तो पॉइंट आ गया आपके पास ये। ठीक है, अगर मैं कहूं एक पॉइंट, अगर हमने लिया x1 तो y कितना आ जाएगा 7। x1 ये 1, ये 1 और ये 7। x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये -x। अगर मैंने लिया x -1 तो यहाँ पे प्लॉट किया, ये आ गया 3। करेक्ट है, -1 के साथ 3 आता है। ये गया -1 और ये गया आपके पास 3, तो पॉइंट आ जाएगा आपके पास 1 और 3। ये एक्चुअली रफली प्लॉट हुआ हुआ। ये मान लो मेरे पास क्या है -1 और 3, तो पॉइंट आएगा आपका यहाँ। इसकी डायग्राम देखो, इसको इनको मिला दो तो आपके पास क्या है स्ट्रेट लाइन। अदरवाइज रिमेम्बर रखो बेटे, जो जितनी भी लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल के साथ जाएंगी उनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑलवेज। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लोगे ना उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। अगर पावर चेंज होनी शुरू हो जाएगी तब ग्राफ में वेरिएशंस आती हैं। ओके मैम। क्लियर है? तो हमने अभी क्या बोला, हमने कहा
Linear equation in two variable always plot a straight line. Very good. Linear equation of two variables this has straight line graph. ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनता है और कुछ नहीं बनता। जैसे जैसे पावर चेंज होगी ग्राफ में वेरिएशंस आती हैं। अगर स्केयर आ जाए ग्राफ पावर आपकी डिग्री 2 आ जाए तो वो कर्व फॉर्म में चला जाता है। क्लियर है बेटे क्वेश्चन? तो हमारा थर्ड भी फॉल्स हो गया। उन्होंने कहा नीड नॉट बी अ लाइन, तो ये फॉल्स है, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर है बेटे थर्ड पार्ट? Yes. Next question, MCQ. A point on a graph of a linear equation x plus y is equal to 5, which meet the line which is parallel to x-axis at a distance unit 2. Next page कर दूं? मैम स्टेटमेंट समझ नहीं आई। हाँ मैं वही समझानी है, इसलिए नेक्स्ट पेज कर दूं। यस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पॉइंट ऑन अ ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, और हमें एक ग्राफ भी दिया हुआ है। A point on the graph of linear equation x plus y is equal to 5 which meet a line, इसकी जगह आप लाइन बनाओगे, इसमें मैं वो लाइन बना लो। मैंने कहा x की वैल्यू 1 तो y कितना आ गया बेटे 4, x 0 y कितना आ गया आपके पास 5, x माइनस 1 y कितना आ गया आपके पास 6। तो हम इसका ना एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आए। 1 2 3 4 5 एंड और इधर 1 2, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। 1 2 हाँ जी, x की वैल्यू 1 तो y क्या है 4, ये गया आपके पास पॉइंट। x की वैल्यू 0 y 5, x की वैल्यू -1 y 6, तो ये यहां जाएगा पॉइंट। इसको प्लॉट कर, ये है लाइन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की। विच मीट अ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन ऐसी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, और से 2 यूनिट के गैप पे है। यहाँ पे एक लाइन प्लॉट की है उन्होंने, ठीक है। अ लाइन क्वेश्चन में बोला है कि जो आप इस इक्वेशन से एक लाइन प्लॉट करते हो, एक और लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये गई पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो वाई एक्सिस के पैरेलल है एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से 2 यूनिट के डिस्टेंस पे है। ये कितना डिस्टेंस दिया है 2 यूनिट, 2 units. and if the
पोजीशन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का पॉइंट निकालना है। हाँ जी, ये 2 यूनिट पे है तो वो एक्स यहाँ पे 2 फिल करो, वाई, तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू 3, ये पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे ये दोनों लाइन मीट करती हैं। बेसिकली आपको ये पॉइंट, वैसे तो ग्राफ से दिख रहा है बेटे ये पॉइंट 3 है आपका, ठीक है। यहाँ y की वैल्यू फिल करोगे तो x क्या आ जाएगा, 3 -2 विच इज 3। तो पॉइंट है आपके पास 3, 3,2 क्लियर है। आंसर इज 3,2। ऑप्शन ए। पॉइंट इज 2,3 है बेटे, ऑप्शन बी। ये देखो ना, x पे 2 है, y पे 3 है, ये 2,3 है। x पे 2 है, y पे 3 है, ये वाला पॉइंट है आंसर। दिस इज द पॉइंट 2,3। मीट देखो कहां पे कर रहा है, मीट कहां पे कर रहा है, 2,3 फ्रॉम पैरेलल टू y एक्सिस, 2 यूनिट फ्रॉम अ ओरिजिन, y एक्सिस के पैरेलल एंड ओरिजिन से 2 यूनिट। मैम 3,2 नहीं आएगा? नहीं बेटे, जो लाइन ना पैरेलल टू y एक्सिस होगी वो x एक्सिस का पॉइंट देगी ना आपको, टच तो x एक्सिस को करेगी ना। यस। तो जो पैरेलल टू y एक्सिस है वो आपको पहले x एक्सिस का पॉइंट देगी, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। फिर आपने बताना है कि जो स्ट्रेट लाइन आपने प्लॉट की है उसके साथ ये कहाँ पे कट हो रही है, ये वाला पॉइंट। तो अगर मेरे पास x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू आएगी ना, ठीक है। देखो ये है ग्राफ बना हुआ है आपके पास, ये आपके पास 2 यूनिट है, प्लॉट कर रहा है 2,3, ये आपके पास y एक्सिस है बेटे, ये तो y एक्सिस होती है, y एक्सिस का 3 आया है ना, तो पॉइंट 3 आ गया ना। अगर आप रीजन टू, सबसे पहले तो पैरेलल लाइन प्लॉट कर लेनी चाहिए जो भी पैरेलल टू y एक्सिस, तो वो x एक्सिस पे हो गया, ठीक है। वो पॉइंट आप फिल करोगे, अब आपको पॉइंट जो मिला है वो x एक्सिस का मिला है, x की वैल्यू फिल करोगे तो y आ जाएगा 5 माइनस। क्लियर है बेटे क्वेश्चन? यस। नेक्स्ट, थर्ड, द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा पॉलिनोमियल की बात करते हैं। पॉलिनोमियल को बेटे आप एफ एक्स से लिखते हैं, है ना, ऐसे लिखते थे ना, पॉलिनोमियल किया है ना आपने, तो पॉलिनोमियल को एफ एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि मैं कहूँ ये दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल, क्या लिखा है मैंने इसको, पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल का मेन आपको क्या याद रखना, अभी ये एफ एक्स, कि जब हम पॉलिनोमियल लिखते हैं तब फंक्शन इज इक्वल टू समथिंग लिखते हैं, क्लियर है। या तो बेटे हम y से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, पढ़ा है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यस। हम y से भी लिख देते हैं, ऐसे लिखते थे ना पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो हमारे पास अगर मुझे ये इक्वेशन लिखनी है तो ये आ जाएगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बनती इन पॉलिनोमियल। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? पॉलिनोमियल जब भी वर्ड आएगा वहां पे आप फंक्शन रिप्रेजेंट करोगे,
वो एक फंक्शन होता है, y इज अ फंक्शन इन टर्म ऑफ अ x, ठीक है। तो पॉलिनोमियल हमेशा fx से रिप्रेजेंट होता है जो कि y होता है। इतना क्लियर है? यस क्वेश्चन में क्या दिया है, ग्राफ ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, आपको मेंशन कर दिया है कि जो पॉलिनोमियल है वो एक कांस्टेंट है। इट मींस बना जा प्रोटीन fx इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। क्या आ गया हमारे पास, fx इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। तो y की वैल्यू आ गई बेटे आपके पास के, y की वैल्यू फिक्स कर दी, y की वैल्यू फिक्स होगी k। अगर हम ग्राफ देखें, मैम समझ नहीं आया। बताते हैं बेटे। बेटे जो पॉलिनोमियल होता है ना वो एक फंक्शन से रिप्रेजेंट होता है, पहली बात तो जब भी हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं ना उसको हम फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, fx होता है, ठीक है। इतना तो क्लियर है? यस fx को आप y भी लिखते थे, इतना भी क्लियर है? यस कि मैं fx को y से रिप्लेस कर सकती हूँ, यस ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया है कि पॉलिनोमियल जो है वो एक कांस्टेंट है, हमारे पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मींस fx इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k है। क्लियर? यस fx क्या हो गया, y हो गया। यस y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, के यहाँ पे जहां जो ये जो y एक्सिस है कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो ये मेरे पास क्या है, k है। क्लियर है? y यस की वैल्यू अब k रहेगी, x की वैल्यू आप वेरी करा सकते हो, x की वैल्यू 1 2 3, नेगेटिव साइड भी जा सकते हो, -1 -2 -3। अगर मैं इक्वेशन में x की वैल्यू 1 ले लूं तो y तो k ही रहेगा। यस मेरे पास x1 है तो y क्या आ गया, k आ गया। अगर मैं x2 लूं तो y क्या आएगा, k आएगा। 3 पे भी y k आएगा, इधर भी y क्या आना है, k ही आना है। इसको मीट करो। लाइन कैसी बनी है हमारे पास, लाइन कैसी बन गई, ये x एक्सिस और ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर है? क्वेश्चन कौन सा, ओके। थर्ड का ऑप्शन बेटे ए है, यहाँ पीछे ऑप्शन गलत दिया हुआ, डी नहीं है। थर्ड का ऑप्शन ए है, ओके मैम पैरेलल टू x एक्सिस ही आएगा। ऑप्शन गलत है, डी नहीं आएगा। y एक्सिस एक जो है वो ओनली y एक्सिस पे मीट करेगा, वो गलत है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है पॉलिनोमियल कांस्टेंट है, तो y की वैल्यू बेटे फिक्स हुई हुई है। यहाँ k x जो है वो वेरी कर रहा है, y फिक्स है। तो हमारे पास जो ग्राफ है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। ऑप्शन इज ए, 3 का ऑप्शन आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 3 उसका ऑप्शन ए है, पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर है? आंसर इज पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर है बेटे? क्वेश्चन क्लियर है? यस कुछ पूछना है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ गिवन ग्राफ। ये तो बेटे ऑप्शन से ही पिक हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 एमसीक्यू जो है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन इज 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 एंड y माइनस 2x इज इक्वल टू 3। ग्राफ की एक लाइन उठाते हैं पहले जिसके पॉइंट्स हैं, ये जो ग्राफ है उसकी मैंने एक लाइन उठाई जिसके पॉइंट्स आपको दिए हैं -2 -1 एंड 2 2। ठीक है,
इक्वेशन होने के लिए ये पॉइंट उसमें लाई करने चाहिए, सोल्यूशन होने चाहिए। ये जो पॉइंट्स हैं वो इसके सोल्यूशंस होने चाहिए दोनों इक्वेशंस के। एक पॉइंट उठा लो। मैंने क्या पॉइंट लिया? मैंने लिया मैम आपने ऊपर वाले क्यों लिए, नीचे वाले क्यों नहीं लिए? वो भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। मैंने ये लिए, आप नीचे वाले भी ले सकते हो। ऐसा कोई नहीं कंडीशन हमारे पास कि हम ऊपर वाले लेंगे तो हम नीचे वाले लेंगे। ओके मैम। आप नीचे वाला -1 भी ले सकते थे। जो नीचे ना पॉइंट है हमारे पास -1 कोई भी ले लो। छोटा पॉइंट प्रेफर किया जाता है, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है और कुछ नहीं। पॉइंट आप कोई भी ले सकते थे। ओके मैम। जैसे मैंने ये ले लिया। अब इसमें देखो फिल करके ये आ गया 7 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -1 1 is equal to 11. -11 -9 7 to the 14 -14 -2 equal to 11. -16 आ गया। दैट इज नॉट इक्वल टू 11 क्योंकि इसमें तो ये तो सोल्यूशन है ही नहीं। मैम यस। एक भी नो सोल्यूशन मिल गया तो हम आगे बढ़ते ही नहीं है, वहीं पे उसको वो ऑप्शन आपका क्रॉस हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? सोल्यूशन होने जरूरी है, वही इक्वेशन होगी। आपको इक्वेशन बनाने में ज्यादा वो नहीं करना कि हम इसको कैसे बनाएं। वो लंबा प्रोसेस होता है y इक्वल टू mx प्लस c वाला, वो नहीं करना आपने। डायरेक्ट फिल करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, बी ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन हमें पता चल गया कि ये गलत है। बी ऑप्शन देखते हैं। 2x plus 7y is equal to 11. इज इक्वल टू 11 एंड 5x plus 3y over equal to 25. इसी में फिल कर देते हैं पहले तो। नहीं, सेम पॉइंट। मैंने तो सेम ही पॉइंट ले लिया, आप चेंज भी कर सकते थे। मैंने सेम ही पॉइंट ले लिए, आप कोई भी फिल कर सकते हो चेंज करके। यहाँ पे फिल किया 2 2 minus 2 plus 7 into -1 -4 minus 7 is equal to -11. दैट इज नॉट इक्वल टू 11। 11. बोल रही है एक क्लास में बच्चों में से एक बच्चा आया नहीं, 3 बच्चों से 4 बारी खींच चुकी हूँ। अच्छा चलो किसी और ऐसे ही बना लो पीछे से। ठीक, किसी और। क्लियर है बेटे? ये भी नहीं है तो हमारा ये ऑप्शन भी क्रॉस हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। सी पॉइंट। X minus 7y is equal to 10, comma 8y पीछे बॉयज बेटे आप सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। पॉइंट आपके पास वही -2, -1। लास्ट लाइन पे जो बॉयज बैठे हैं ना, थर्ड बॉय राइट से थर्ड बॉय, लास्ट लाइन बेटे मनवीर। और बेटा गर्ल्स ने कोई आंसर नहीं इनको बताना, लेट देम सॉल्व। ओके मैम। एक दो पूछो बेटे इसका आंसर बताओ। सॉल्व किया आपने? सी का। हाँ जी बेटे, सी है आपके पास ऑप्शन। इसमें ये वैल्यूज फिल करो और मुझे बताओ कि ये 10 आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं कर रहे थे। करो करो फटाफट, यही खड़े होके कॉपी पेन दे दो बेटे इसको। गर्ल्स एक कॉपी और पेन दे दो इसको, सॉल्व करने दो इसको। करो इसको सॉल्व बेटे फटाफट।
मैम 1 is not equals to 11. यस, आंसर इज नॉट इक्वल टू। जब ये फिल करोगे तो इसका जो भी आंसर आएगा दैट इज नॉट इक्वल टू 10 है, 11 नहीं है बेटे। यहाँ पे 10 है, देखो, ठीक है, नॉट इक्वल टू 10। जब हमने फिल किया 3 इंटू -2 -7 इंटू -1 -6 प्लस -6 + 7 नॉट, तो ये भी हमारे पास क्रॉस हो गया, सी इज नॉट ऑप्शन। तो हमारे पास आंसर क्या बचा बेटे? डी। फिल करके देख लेना, नहीं करवा रही, ठीक है, ऑप्शन इज डी। आंसर करेक्ट कर लो पीछे से। ये इंटरचेंज हुए एक्चुअली 3 एंड 4th। 3 का आंसर ए है, 4th का आंसर डी है, ठीक है, गलती से मिसप्रिंट हुए ए एंड डी में। 4th का ऑप्शन जो है वो आपका आंसर इज डी। ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे। मैम टाइम इज ओवर। टाइम इज ओवर, ओके, ठीक है बेटे, ये असाइनमेंट आप ट्राई करना, करके आओगे, ठीक है। आंसर आपको मिल गए हैं सबके, बाकी आंसर ठीक है, सिर्फ इसी मैम एक बार 5th का आंसर बता दो। 5th का, 5th का आंसर सी है बेटे, बोथ ए एंड बी। तो 2 मिनट है तो मैं बता देती हूँ क्या होता है। ग्रेडियंट देख लो क्या होता है। आगे क्यों नहीं हो रहा मैम? बस लास्ट बेटा, ग्रेडियंट क्या होता है? एवरीबडी पीछे, बॉयज इधर देखो। गर्ल्स सेकंड रो, आवाज ही नहीं आ रही। ग्रेडियंट देखो क्या होता है। मैम वी डोंट नो। हाँ मैं बता रही हूँ, सुनो। ग्रेडियंट होता है अगर आप एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन ऐसे प्लॉट कर दो, ठीक है, एक्स एक्सिस पे लाइन प्लॉट की है तो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज ये कोई ना कोई एंगल बनाएगी, ठीक है, यहाँ पे एक ना एंगल बनेगा अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो। जब हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हैं तो वो एंगल हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होता है, ठीक है। जब आप क्लॉकवाइज मेजर करोगे बेटे तो नेगेटिव होता है। यहाँ पे जो ये इंक्लाइंड होती है एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ किसी एंगल के साथ ये जो लाइन है आपकी ये एंगल बना रही है तो ये इंक्लाइंड है, क्लियर है मैम यस। ये जो होती है इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। मेन इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये एंटी क्लॉकवाइज हमेशा एंगल मेजर होता है जो कि पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज, जब भी एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे विद एक्स एक्सिस, किसके साथ? विद एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ नहीं एंगल मेजर करना, एक्स एक्सिस के साथ। मैम जो एंगल है वो होता है ग्रेडियंट। क्या बेटे? मैम जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो होता है ग्रेडियंट। हाँ, वो आपको कितने डिग्री पे ये इंक्लाइंड है बेसिकली ये आगे। ग्रेडियंट एंगल की वो लाइन। मैम ये हाँ एंगल ही है, एंगल है बेटे आपके पास, कितने डिग्री का एंगल बनता है। ग्रेडियंट को हम स्लोप भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ना आपको वर्ड स्लोप मिलेगा। ये जो ग्रेडियंट है इसको स्लोप भी बोलते हैं और ये जो हमने एंगल निकाला है ना यही आपकी स्लोप होती है, ठीक है। जो आप एंगल निकाला है, ये कौन सी क्लास है? 9th। जो एंगल निकाला है ना ये आपकी स्लोप होती है कि कितने डिग्री का एंगल
विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस ये लाइन आपकी बना रही है, ये आपका ग्रेडियंट होता है। मैम जैसे आपने फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताया बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन बी है। स्टीपनेस भी यही होती है बेटे। एक मिनट,